Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying continued proportion and the solved examples before the practice at 4.5. Okay, so the first point of continued proportion is three quantities are said to be in continued proportion if ratio between the first quantity and the second quantity is equal to the ratio between the second quantity and the third quantity. अब देखो सबसे पहली बात, ये continued proportion का definition सिर्फ three quantities तक सीमित नहीं है. 4 quantities can also be in continued proportion. 5 quantities भी continued proportion में रह सकती है. 6 quantities भी continued proportion में रह सकती है, and so on. पर कम से कम 3 quantities चाहिए. Okay, to be in continued proportion. 2 quantities can never be in continued proportion. और 3 quantities में भी ये क्या बोल रहे हैं? जो first quantity है, okay, upon second quantity is equal to second quantity upon third quantity. यदि ऐसा कुछ आता है तो then the three quantities are said to be in continued proportion. अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा. Consider the ratios 4:12 and 12:36. Here the successor यानी second term of the first ratio is equal to the predecessor यानी first term of the second ratio. देखो ये first ratio है, इसका second term is equal to second ratio का first term. ऐसा होने पर 4, 12, 36 are said to be in continued proportion. Okay. If A upon B is equal to B upon C, then A, B, C are said to be in continued proportion. Okay. और further आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि B square is equal to AC. Now, when A, B, C are in continued proportion, then B is known as geometric mean of A and C or mean proportional of A and C. Okay. If fifth point देखो, if A upon B is equal to B upon C is equal to C upon D is equal to D upon E is equal to E upon F है, then A, B, C, D, E and F are said to be in continued proportion. और अब देखो एक और बात, ये 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा अभी, उनके सेम मीनिंग होते हैं. कौन से 5 पॉइंट्स? कि भैया A, B, C are in continued proportion, मतलब ही A upon B is equal to B upon C, मतलब ही B square is equal to AC, मतलब कि B is geometric mean of A and C, and at last these are all equal to कि भैया D is mean proportion of A and C. तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इन सबका एक ही मीनिंग होता है. ओके, नाउ सी द सॉल्व्ड एग्जांपल्स बिफोर प्रैक्टिस एट 4.5. फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल इज द गिवन पार्ट इज x is geometric mean of 25 and 4. To find the value of x. अब देखो x is geometric mean of 25 and 4, इसका मतलब क्या होता है कि x square is equal to 25 into 4. हम ये देख चुके हैं कि if b is geometric mean of a and c, तो इसका मतलब b square equal to ac. तो वैसे ही x square equal to 25 into 4. So x square is equal to 100. 25 4 100. अब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट जाएगा. हम आमतौर पर जब स्क्वायर हटता है सामने स्क्वायर रूट जाता है तो प्लस माइनस की साइन देते हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे. तो x is square root of 100 and square root of 100 is 10. So the value of x is 10. Okay. Now see the second solved example. The given part is 4a square p, 8ab square and p are in continued proportion. Find the value of p. अब देखो हम ये देख चुके हैं कि if a, b and c are in continued proportion, मतलब a upon b is equal to b upon c. So likewise 4a square b, 8ab square and p are in continued proportion. इसका मतलब 4a square b upon 8ab square is equal to 8ab square upon p. अब ये 4a square b into p हो जाएगा. ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. और 8ab square into 8ab square. अब ये देखो p का तो वैल्यू फाइंड करना है हमें. ये जो 4a square b p के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में, ये राइट में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. तो दिस विल बी 8ab square into 8ab square upon 4a square b. अब देखो 4 1 जा 4 2 जा 8. a into a क्या होगा? a square, और नीचे भी a square है तो ये सब a कैंसिल आउट हो जाएंगे. नीचे एक b है, ऊपर b square into b square है, तो किसी एक b square का एक b कैंसिल कर देंगे हम लोग. तो क्या बच जाएगा? p is equal to ये 2 और इधर से b square बच गया है into ये 8 और इधर से सिर्फ एक b बचा है. मतलब p is equal to ये 2 8 16, b square into b square is b cube. This is the value of p. Okay.
थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल देखो, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, 12 एंड 18 such that the resulting numbers are in continued proportion। मतलब ये जो तीन नंबर्स है, ये तीन नंबर्स में से कोई एक स्पेसिफिक नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना है, और वो नंबर सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट x be subtracted from 7, 12 and 18 such that the resulting numbers are in continued proportion। ओके, सो अब देखो ये नंबर्स में से x सब्ट्रैक्ट करना है, ये x में से मत सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, सो इन नंबर्स में से x सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्टिंग नंबर्स कौन से रहेंगे, इट विल बी 7 माइनस एक्स ना, x माइनस 7 गलत हो जाएगा, फिर 12 माइनस एक्स एंड 18 माइनस एक्स, ये रहेंगे रिजल्टिंग नंबर्स, और ये रिजल्टिंग नंबर जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेंगे। ओके, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब देखो हम ये देख चुके हैं कि इफ a, b and c are in continued proportion, तो इसका मतलब a upon b is equal to b upon c। तो likewise 7 minus x, 12 minus x and 18 minus x are in continued proportion। तो इसका मतलब क्या होगा, 7 minus x upon 18 minus x is equal to 18 minus x upon, sorry ये 12 आएगा, 7 minus x upon 12 minus x is 12 minus x upon 18 minus x। ओके, अब देखो इन नंबर्स में से x सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर्स रहेंगे ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेंगे, 7, 12 और 18 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, जो LHS का न्यूमरेटर है आपका 7 माइनस एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे RHS का डिनोमिनेटर विच इज 18 माइनस एक्स, और जो RHS का न्यूमरेटर है 12 माइनस एक्स, उसमें मल्टीप्लाई होगा LHS का डिनोमिनेटर विच इज 12 माइनस एक्स। अब देखो 7 into 18 is 126, 7 into minus x is minus 7x, okay, minus x into 18 is minus 18x, minus into minus plus x into x is x square is equal to 12 12s are 144, 12 into minus x is minus 12x, minus x into 12 is minus 12x, minus into minus plus x into x x square। अब देखो इक्वल टू के अपोजिट साइड यदि सेम वैल्यू रहे विद सेम साइन तो कैंसिल आउट होते हैं, जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x स्क्वायर है विद पॉजिटिव साइन, और राइट हैंड साइड में भी x स्क्वायर है विद पॉजिटिव साइन, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि एक का साइन पॉजिटिव और एक का नेगेटिव रहता और वो इक्वल टू के अपोजिट साइड रहते तो कैंसिल आउट नहीं होते थे, और यदि ऐसा भी होता था कि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब, तब भी कैंसिल आउट नहीं होता था, क्योंकि वो लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स ही कैंसिल आउट होते हैं। अब देखो दिस इज 126, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन आती है माइनस की, 7 प्लस 18 इज 25, ये 144 जैसा कि वैसा, माइनस 12x माइनस 12x, माइनस माइनस प्लस, पर साइन आएगी माइनस की। अब देखो ये माइनस 25x जैसा कि वैसा रखो आप, माइनस 24x राइट साइड में लेफ्ट में आएगा तो प्लस 24x होगा, ये 144 जैसा कि वैसा, 126 जो है वो लेफ्ट में है राइट में आएगा तो माइनस 126 होगा, माइनस 25 प्लस 24 तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस x इज इक्वल टू 18, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 18। ओके, x माइनस 18 आया है, और आपको इन्होंने क्या पूछा था, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, 12 एंड 18 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और हमने वो नंबर x कंसीडर किया था तो x का वैल्यू आ गया, देयरफॉर माइनस 18 should be subtracted from 7, 12 and 18 such that the resulting numbers are in continued proportion। बस इतना ही पूछा था हमें। ओके, पर यदि आगे बढ़कर आपको रिजल्टिंग नंबर्स कौन से आते हैं वो निकालने की अगर इच्छा रही तो आप ऐसा कर सकते हो,
रिजल्टिंग नंबर्स क्या रहेंगे? पहला था 7 माइनस एक्स, यानी 7 माइनस एक्स इज माइनस 18, यानी 7 प्लस 18 25. देन नेक्स्ट 12 माइनस एक्स, यानी 12 माइनस ऑफ एक्स इज माइनस 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, सॉरी, so 12 plus 18 is 30. Okay, और लास्ट इज 18 माइनस एक्स, यानी 18 माइनस ऑफ माइनस 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, 18 प्लस 18 कितना होगा? 36. इसका मतलब therefore 25, 30 and 36 are in continued proportion. पर हमें ये नहीं पूछा था, हमें बस इतना पूछा था कि ये जो तीन नंबर्स है 7, 12 और 18, इसमें से कौन सा नंबर माइनस करना चाहिए सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स विल बी इन एपी. तो हमने बता दिया कि हाँ, ये जो तीन नंबर्स है इसमें से आप माइनस 18 को सब्ट्रैक्ट करो सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. मैंने एपी बोल दिया, डिसकंटिन्यूड प्रपोर्शन. और यदि आपको रिजल्टिंग नंबर्स कौन से वो फाइंड करना है, सो दिस इज द मेथड. रिजल्टिंग नंबर्स कौन से थे? 7 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स. वहां पर x के जगह आप माइनस 18 पुट करो, तो रिजल्टिंग नंबर्स आपके आ गए. 25, 30 एंड 36 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. अब यदि आपको ये भी वेरीफाई करना है कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं, तो आप क्या करोगे? तीन नंबर्स कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कब रहते हैं? जब मिडिल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो एक्सट्रीम्स है इनका मल्टीप्लिकेशन. तो 30 का स्क्वायर क्या आता है? 900. और 25 इंटू 36 देखो क्या आता है, यहाँ पे देखो, ये 36 लिख दिया इंटू 25. ओके, 25 6 150 होता है, 15 कैरी करो, और 25 3 होता है 75, 75 प्लस 15 900. सो दिस इज 900. इसका मतलब ये जो रिजल्टिंग नंबर्स आए हमारे, ये वेरीफाई भी हो गए कि हाँ भैया दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. ओके, अब देखो आगे के सॉल्व एग्जांपल आर बेस्ड ऑन के मेथड. नाउ व्हाट इज दिस के मेथड? The K method is used to solve example based on equal ratios, that is equal proportion. मतलब दो या दो से ज्यादा रेशियो जब इक्वल रहते हैं तो they are said to be in proportion. And in this simple method, every equal ratio is assumed to be equal to K. मतलब क्या? तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा. आप देखो, here given is A upon B equal to C upon D. So यहाँ पर दो रेशियोज इक्वल दिए हमें. So हम क्या करेंगे? हम ये हर रेशियो जो है इक्वल टू के ऐसा ले लेंगे. ओके, क्या बोल रहे थे वो? एवरी इक्वल रेशियो इज अज्यूम टू बी इक्वल टू के. ओके, तो एवरी रेशियो इज अज्यूम टू बी के, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू के है एंड c अपॉन डी भी के है. बराबर है. अब हमें क्या प्रूफ करना है? 5 माइनस 3c अपॉन 5b माइनस 3d इज इक्वल टू 7a माइनस 2c अपॉन 7b माइनस 2d. तो एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करना होगा. अब सबसे पहले जो आपने यहाँ पे अजम्पशन किया है कि लेट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू k, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के. नाउ व्हाट इज LHS? इट इज 5 माइनस 3c अपॉन 5b माइनस 3d. सो दिस इज 5. a के जगह आप b के का वैल्यू पुट करोगे, 3c के जगह आप पुट करोगे d के, अपॉन 5b माइनस 3d. अब देखो आप ब्रैकेट ओपन करो, सो दिस विल बी 5b के माइनस दिस इज 3d के अपॉन 5b माइनस 3d, और k कॉमन निकलेगा आपके न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स में से. तो क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में? 5b माइनस 3d, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 5b माइनस 3d था, सो ये कैंसल आउट होगा. इसका मतलब LHS इज इक्वल टू k. आप 1 नाम दे दो इसे. ओके, देन RHS पार्ट सॉल्व करेंगे हम. RHS में क्या दिया है रेशियो? 7a माइनस 2c अपॉन 7b माइनस 2d. अब देखो a का वैल्यू हमने क्या निकाला है? b के, एंड व्हाट इज c? इट इज d के, अपॉन 7b माइनस 2d. ब्रैकेट खोलो, सो दिस इज 7bk माइनस 2dk अपॉन 7b माइनस 2d. k कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर में से दोनों टर्म्स के, सो बच जाएगा 7b माइनस 2d
और नीचे भी है डिनोमिनेटर में 7b माइनस 2d जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब RHS इज इक्वल टू K। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के LHS और RHS इक्वल हो गए हैं। ओके क्योंकि LHS RHS दोनों का वैल्यू K है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब व्हाट वाज LHS 5a minus 3c upon 5b minus 3d and what was RHS 7a minus 2c upon 7b minus 2d. Okay, so this is your proof. Okay, second solved example देखो, the given part is a b c are in continued proportion. To show a plus b whole bracket square upon ab is equal to b plus c whole bracket square upon bc. अब देखो a b c are in continued proportion, इसका मतलब a upon b is equal to b upon c. So हम बोलेंगे कि let a upon b is equal to b upon c is equal to k. इसका मतलब a is equal to b k, okay, और b is equal to c k. So b is equal to c k आ गया है, तो यहां पर जो b है उसको c k से रिप्लेस कर दो. So this will be c k square. बराबर है. अब यदि ये समझने में आसानी नहीं हो रही है तो क्या करना देखो. अब यदि ऐसा कुछ आप देखते हो कि दो रेशोज हैं, दोनों रेशो इक्वल है और दोनों रेशो में पहले रेशो का जो सेकेंड टर्म है और दूसरे रेशो का जो फर्स्ट टर्म है वो यदि सेम है और हम वो दोनों रेशो इक्वल टू के लेते हैं सॉरी, तो सबसे पहले आप b अपॉन सी इक्वल टू के लो. मतलब जो सेकेंड रेशो है इससे शुरुआत करो. तो b अपॉन सी इक्वल टू के मतलब क्या हो गया, b इज इक्वल टू सी के. बराबर है. और अब पहला रेशो इज इक्वल टू के लो, a अपॉन b इज इक्वल टू के. इसका मतलब a इज इक्वल टू b के, ये b मल्टीप्लाई होगा k के साथ, और b का वैल्यू क्या निकाला आपने, c के. तो ये b के जगह c के इंटू ये k जो ऑलरेडी था. सो a इज इक्वल टू c के स्क्वायर. बराबर है. मतलब आपके पास b का वैल्यू है और a का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ c एंड k. अब LHS RHS पार्ट की ओर बढ़ते हैं. सो LHS इज इक्वल टू a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए बी. a यानी c के स्क्वायर है आपका और b यानी c के. सो ये होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन a यानी c के स्क्वायर और b यानी c के. क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है देखो. अब पहली बात तो ऊपर न्यूमरेटर में ये स्क्वायर ब्रैकेट दो, क्यों देना है बताता हूं. ये दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, एक c और एक k, तो बच जाएगा एक k क्योंकि k स्क्वायर था पहले टर्म में, सिर्फ आप c और k कॉमन निकला तो एक k बच गया, प्लस ये पूरा ही c के निकल चुका है तो 1 बचेगा होल ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, नाउ c इंटू सी c स्क्वायर और k स्क्वायर इंटू k इज k क्यूब. अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो ये हो जाएगा c स्क्वायर k स्क्वायर, ये स्क्वायर इस c को भी जाएगा k को भी जाएगा और ये k प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर को भी जाएगा अपॉन c स्क्वायर इंटू k क्यूब. सो ये c स्क्वायर कैंसिल, ऊपर से k स्क्वायर और नीचे 3k है तो उसमें से k स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा, k प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन k. अब इसको यहाँ तक ही सीमित रहने दो, इसको और आगे सॉल्व करके कोई मतलब है नहीं, कोई कहीं से कैंसिलेशन होने नहीं वाला है. ओके, सो अब RHS की ओर बढ़ेंगे. RHS पार्ट क्या है, b प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन b इंटू सी. ओके, b का वैल्यू है c के और c का c जैसा कि वैसे ही रखना है. सो ये b है c के इंटू c. अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें जो दोनों टर्म्स है उसमें सिर्फ c कॉमन निकलेगा तो बचेगा k प्लस 1 और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर. c इंटू सी दिस इज c स्क्वायर अपॉन k. ओके, अब देखो ये हो जाएगा c स्क्वायर इंटू k प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के. c स्क्वायर कैंसिल. सो इसका मतलब RHS इज इक्वल टू k प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन k. इसे आप 2 नाम दो. सो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS है. ओके, देखो दोनों के राइट हैंड साइड सेम है. इसका मतलब
ये a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू b plus c whole bracket square upon bc. This is your proof. Okay. तो देखो यहां भी सेकंड सॉल्व एग्जांपल के जैसा a b and c are in continued proportion. इसका मतलब a upon b is equal to b upon c. So let both these equal ratios is equal to k. और मैंने बोला है आपको जब ऐसा कुछ रहता है कि पहले रेशियो का सेकंड टर्म और सेकंड रेशियो का फर्स्ट टर्म इक्वल है तो आप सेकंड रेशियो से शुरुआत करो. b अपॉन c इज k. इसका मतलब b इज इक्वल टू c k. देन a अपॉन b इज इक्वल टू k. इसका मतलब a इज इक्वल टू b k और b का वैल्यू क्या है आपका c k इंटू k. सो a इज इक्वल टू c k स्क्वायर. ओके. नाउ सी LHS पार्ट क्या रहेगा a अपॉन c. a इज c के स्क्वायर अपॉन c. ये c कैंसिल मतलब LHS आ गया आपका k स्क्वायर. आप इसे वन नाम दे दो. नाउ द RHS पार्ट इट इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर. a का वैल्यू है आपका c के स्क्वायर. सो ये a स्क्वायर है तो c के स्क्वायर का स्क्वायर. ओके. ये बहुत अच्छे से लिखना है, नहीं तो बहुत से बच्चे कभी कभी ये स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं, सिर्फ c के स्क्वायर लिख देते हैं. a इज c के स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस a इज c के स्क्वायर इंटू b इज c के प्लस b स्क्वायर. वेट अ मिनट. ये जो लास्ट में जो b स्क्वायर है आपका उसके जगह आएगा c के होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन. नाउ सी दिस इज b स्क्वायर यानी ck का स्क्वायर प्लस b के जगह ck इंटू दिस c और फाइनली c स्क्वायर. अब देखो ऊपर में c के स्क्वायर इंटू सॉरी c के स्क्वायर का स्क्वायर है तो दिस विल बी c स्क्वायर और k स्क्वायर का स्क्वायर यानी k रेज टू 4 प्लस c इंटू c स्क्वायर k स्क्वायर इंटू k क्यूब प्लस c के होल ब्रैकेट स्क्वायर यानी c स्क्वायर k स्क्वायर upon this is c square k square plus c into c square into k plus c square. This will be. अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में तीन टर्म्स है, यहां से क्या क्या कॉमन निकल सकता है. तीनों टर्म्स में c स्क्वायर प्रेजेंट है तो c स्क्वायर कॉमन निकलेगा. फिर k रेज टू 4 k क्यूब और k स्क्वायर का HCF आएगा k स्क्वायर. ओके. जिसका पावर छोटा है वो कॉमन निकलेगा. तो पहले टर्म में बच जाएगा k स्क्वायर, दूसरे टर्म के लिए बच जाएगा k. ओके. क्योंकि c स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन निकल चुके हैं और k स्क्वायर भी कॉमन निकला है हर टर्म में से. तो पहले टर्म में c स्क्वायर k स्क्वायर निकल चुका है तो k स्क्वायर बचेगा प्लस दूसरे टर्म में से भी c स्क्वायर और k स्क्वायर निकल चुका है तो एक k बचेगा प्लस तीसरे टर्म में से आपका c स्क्वायर k स्क्वायर दोनों ही निकल चुका है तो 1 बचेगा. और देखो नीचे में c स्क्वायर तीनों ही टर्म में तो कॉमन निकलेगा और अब बच जाएगा नीचे में k स्क्वायर प्लस k प्लस 1. सो ये तो कैंसिल आउट होगा, ही c स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा. तो RHS इज इक्वल टू k स्क्वायर. इसे 2 नाम दो एंड सी फ्रॉम 1 एंड 2 LHS RHS इक्वल है क्योंकि दोनों का वैल्यू k स्क्वायर आया है. सो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS. इसका मतलब ये फाइनल आंसर लिखना है आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके. a अपॉन c इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर. दिस इज योर प्रूफ. ओके. A fourth solved example देखो. What is the given part? 5 numbers are in continued proportion, जिसमें first term is 5, last term is 80. Find the numbers. अब 5 numbers बोले continued proportion में तो क्या करेंगे हम? Let the 5 numbers in continued proportion b. पहला नंबर हम a लेंगे. तो अब क्या होता है 5 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो यदि एक पहला नंबर आपको पता है
तो बाकी के नंबर्स कैसे मिलते हैं, इनमें कॉमन फैक्टर होता है, वो कॉमन फैक्टर k रहेगा। तो पहला नंबर अगर a है तो दूसरा आएगा ak, तीसरा आएगा ak स्क्वायर, फिर ak क्यूब एंड द फिफ्थ विल बी ak रेज टू 4। ओके, मतलब a इंटू k रेज टू 4, a इंटू k स्क्वायर, a इंटू k क्यूब, वैसा है। ओके, सो दीज आर द 5 नंबर्स विच आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। इसमें भी इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट टर्म is 5, therefore a is 5 and last term is 80, ये सब गिवन है, और लास्ट टर्म 80 है, इसका मतलब a इंटू k रेज टू 4 इज 80, जबकि a is 5 तो 5 इंटू k रेज टू 4 इज 80, मतलब k रेज टू 4 इज 80 upon 5 and 80 upon 5 is 16। So देखो ये 4 एज अ पावर a हटेगा तो सामने रूट में आ जाएगा, 4th रूट ऑफ 16 एंड 4th रूट ऑफ 16 +2 -2 दोनों होता है, पर हम सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो k का वैल्यू आ गया आपका 2। ओके, अब देखो a इज इक्वल टू 5, a इंटू k क्या आएगा, 5 इंटू k इज 2 यानी 10, a इंटू k स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर यानी 5 इंटू 4 20, a इंटू k क्यूब यानी 5 इंटू 2 क्यूब यानी 5 इंटू 8 विच इज 40, और a इंटू k रेज टू 4 हमको पता है लास्ट टर्म क्या है 80, वेरीफाई करके देख लेते हैं आता है क्या, 5 इंटू 2 रेज टू 4, 5 इंटू 16 80। ओके, देयरफॉर the 5 numbers in continued proportion are 5, 10, 20, 40 and 80। okay,